Hello and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, listeners, will also be taking calls from you and any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on 2331 4444, 2371 7106, and 23717117. And listeners who are calling us from outside Delhi will have to add the Delhi STD code 011 before these numbers. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में देंगे आपको ताजा आर्थिक समाचार। आज सोमवार है, कार्यक्रम में आपके सवाल भी लेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यहां बता दें कि कार्यक्रम में किसी कंपनी विशेष या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। हमारे दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना ना भूलें। आज सवालों का जवाब देने और चर्चा के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में ऑनलाइन आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर यामिनी अग्रवाल। डॉक्टर यामिनी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। धन्यवाद। Let's begin with the headlines. Retail inflation eases marginally to 6.26% in June this year. Elevated prices in food, fuel and clothing keep inflation above 6%. Domestic stocks close almost flat. Sensex finishes at 52,373. Nifty settles at 15,693. And Brent crude prices decline to trade below $75 per barrel. इस वर्ष जून में खुदरा महंगाई दर मामूली कमी के साथ 6.26% रही। खाद्य वस्तुओं, ईंधन और कपड़े की कीमतें बढ़ने से मुद्रास्फीति 6% से ऊपर। घरेलू शेयर बाजार लगभग सपाट स्तर पर हुए बंद। सेंसेक्स 52,373 पर और निफ्टी 15,693 पर बंद हुए और ब्रेंट कच्चे तेल के दाम गिरकर $75 प्रति बैरल से नीचे आए। Let's begin with the retail inflation figures which came out a little while ago. Retail inflation measured by the Consumer Price Index or CPI eased marginally to 6.26% in the month of June this year. As per the Ministry of Statistics and Program Implementation data released today, the retail inflation remained above 6% for second successive month as prices of food, fuel and clothing sections remained elevated. Retail inflation for May this year was 6.3%, mainly on account of high prices of food and energy items. Prior to this, the CPI came below the 6% mark for 5 consecutive months. RBI maintains retail inflation at 4% with a margin of 2% on either side. After 5 months of CPI data in May has overshot the RBI's upper margin of 6%. Dr. Agrawal, this is the second month, as we just saw, that this is the second month that the CPI data has overshot 6%. Is it a cause for worry, or do you see this, coming down in the coming months later when, because now the economy started to open up? Well, it's important to see that this inflation data is, higher than 6%. But as the governor says, RBI governor says, it's a temporary phase. Primarily because the crude oil prices are very high at the moment and the OPEC has not increased its supply. Globally also the commodity prices are very high. There have been supply disruptions because of the second wave of COVID. As a result, locally, because there were supply disruptions, the food prices have also gone up. So when we look at these prices, we expect that as slowly and gradually the economy is opening up, the supply chains would, resume to their levels and the inflation is likely to come down then.
And we've already been joined by our first listener today. That is Khan Chandani from Mumbai. Welcome to the program. हेलो थैंक यू जी मैं खान चंदानी बोल रहा हूँ मुंबई से। अपना सवाल पूछिए। मेरा शेयर मार्केट के बारे में एक सवाल है मैम। जी पूछिए। पूरी दुनिया में कोरोना काल में सारे उद्योग धंधे ठप पड़े हुए हैं, विशेषकर भारत में इकोनॉमी की हालत खराब है। उसके बावजूद भी शेयर मार्केट ऑल टाइम हाई तक पे चला गया है, तो इसके पीछे क्या कारण है? जी शेयर मार्केट एक्सपेक्टेशंस पे काम करता है और इस पे काम करता है कि जो है आगे आने वाले समय में कैसा प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी और क्या इकोनॉमी का जो है ओवरऑल ग्रोथ रहेगी। देखा जाए तो कोविड की वजह से जो इकोनॉमी को रोक दिया गया था या इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रोक दिया गया था, उसकी वजह से खासा असर स्टॉक मार्केट पे भी देखा गया था। पर क्योंकि इकोनॉमी को वापस खोला गया और कोविड की वैक्सीनेशन आई और चीजें हुई, जिसकी वजह से इकोनॉमी की रिकवरी और जो ओवरऑल ग्रोथ है उसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा। इसी वजह से हमने देखा है कि स्टॉक मार्केट्स में ग्रोथ रही है। एक और कारण ये भी रहा है कि बहुत सारे नए निवेशक जो है जुड़े हैं स्टॉक मार्केट्स में लॉकडाउन के दौरान, तो उसका भी खासा असर रहा है। एक लिक्विडिटी जो है मार्केट में वो भी इंक्रीज हुई है क्योंकि अकोमोडेटिव स्टैंड रखा है आरबीआई ने, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट्स में बढ़ोतरी है। जी दिल्ली से हमारे कॉलर हैं अरविंद गुप्ता फोन लाइन पर। हेलो मार्केट मंत्रा टीम को सादा नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ, मेरा प्रश्न है कि जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनका ओपन मार्केट पॉलिसी के हिसाब से डे टू डे बेसिस पे रेट का निर्धारण होता है जी। अब मैंने क्वेश्चन ये है कि पिछले हफ्ते में 3% में क्रूड ऑयल के रेट डाउन हुए, लेकिन हमारे लोकल मार्केट में तो रेट डे टू डे बढ़ रहे हैं, तो ट्रांसपेरेंसी कहाँ रही? जी क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज कर गई हैं प्रीवियस मंथ से, और जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सिर्फ हमारे देश पे नहीं बाकी संसार भर में भी इन्फ्लेशन का असर है। जो देखा जा रहा है इन्फ्लेशन सिर्फ क्रूड ऑयल प्राइसेस की वजह से नहीं है, बट सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस जो लॉकडाउन की वजह से हुए हैं उसकी वजह से भी है। तो ओवरऑल क्योंकि हम जो है क्रूड ऑयल की प्राइसेस को कंटिन्यूअसली मार्केट डिटरमिन करते हैं, उसका असर हम देख रहे हैं अपनी मार्केट्स पे भी। And before we take our next caller online, let's continue with the economic figures, the figures that have come out today. Let's talk about the industrial output figures. As per the ministry data, the factory output measured in terms of the Index of Industrial Production or IIP for the month of May this year witnessed a year-on-year growth of 29.27%. IIP was 88.4% in the year-ago period. The number is slightly lower than expected owing to the stringent lockdowns imposed in May in the face of rising infections during the second wave. Industrial output or factory output is used to measure the economic activity of the country's business landscape. Dr. Agarwal, good news on the industrial output front, and the Niti Aayog Vice Chairman Rajiv Kumar also said yesterday that Indian economy will register a double-digit growth in this fiscal. So given the fact that the figures that have come out today for the month of May are quite encouraging, and that was, like we said, that because it was still many places in India were under lockdown, so chances are that probably the June figures are going to be better. So do we overall an optimistic scenario for India? We can go back, we can hope that India will get a double-digit growth? Overall an optimistic view for the economy, primarily because the preparations for handling the second wave as well as the third wave have been very good in terms of managing the pandemic, as there has been a decrease in the cases registered for COVID. Though because of the Delta variant, there has been an increase in the infection, and one believes that the third wave would come in. The preparation for that also has been seen in terms of giving emergency use approvals to certain vaccination. That will, as well as the overall liquidity as well as the fiscal stimulus that has been given for the to handle the pandemic, will help the economy to recover fast. Also, the opening up of the economy has helped bring about a positive sentiment among the investors.
And now we have Mr. Atanu Saha from Kolkata. Mr. Saha, welcome to the program. Yes, Please. good evening, ma'am. Good I evening. am calling from Kolkata, Atanu Saha. My question is, do we distinguish cryptocurrency against gold as a value product? Thank you. Cryptocurrencies which don't have an intrinsic value as they're not backed by gold. Gold investment is different and has an intrinsic value by the metal itself. Cryptocurrencies like bitcoins and others are very volatile in terms of investments as miners mine them and then they are available at different prices while they are traded from one person to another. दिल्ली से धर्मवीर प्रजापति फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो जी प्रजापति जी, सवाल पूछिए अपना। ये पूरी टीम को नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता हूँ अपने एक्सपर्ट से कि हमारे टीचर कहा करते थे कि आप न्यूज़पेपर का सेकंड लास्ट पेज देखा करें, इसमें शेयर मार्केट के बारे में बताया जाता है जी। पर आज तक हमें ये समझ नहीं आया शेयर मार्केट के बारे में। हम शेयर मार्केट में कुछ पैसा लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें किस जगह कहाँ जाके संपर्क करना पड़ेगा जहाँ हमें सही तरीके से समझाया जाए, बताया जाए कहाँ पैसा लगाया जाए, किस एजेंट से या किस ऑफिस में, ऐसे कुछ हम नए श्रोता हैं इसके बारे में जो बताएं। जी देखिए, आप नए हैं तो आप एक स्टॉक ब्रोकर को कांटेक्ट कीजिए और आप एक डीमैट अकाउंट खोल लीजिए। डीमैट अकाउंट के साथ आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी मिल जाएगा, उसके थ्रू आप जो है ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप आजकल बैंक में भी अकाउंट खोलें तो वो 3-in-1 अकाउंट्स होते हैं जिसमें डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट आपको मिलता है, उसके थ्रू आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप जानकारी जानना चाहते हैं कि किस स्टॉक में निवेश करें तो बड़े सारे प्रकाशन हैं जो प्रिंट में हैं और टेलीविजन मीडिया में भी आते हैं जो जानकारी देते हैं कि किस सेक्टर में आप निवेश करें और कैसे निवेश करें। बड़ी सारी रिपोर्ट नेट पे भी अवेलेबल हैं जिनको आप देख करके निवेश कर सकते हैं। और अब हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ गए हैं गौरव। गौरव, कार्यक्रम में स्वागत है, अपना सवाल पूछें। मैडम नमस्ते। मेरा सवाल प्रॉपर्टी और मतलब रियल एस्टेट एंड पेट्रोलियम से संबंधित है। पेट्रोलियम सबकी कीमतें बहुत बढ़ी हुई हैं इंडिया में। क्रूड ऑयल की कीमत भी अब बढ़ गई थी लेकिन अब कम हो रही है, लेकिन बाकी कमोडिटीज के प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं। इस संदर्भ में बाकी चीजें तो हमारे यहाँ सब बढ़ गई हैं लेकिन प्रॉपर्टी के रेट्स नहीं चल रहे हैं। व्हाट इज द रीजन एंड इज इट ट्रू दैट गवर्नमेंट इज जस्ट सिटिंग ऑन द क्रूड नीडल? आई मीन पेट्रोलियम एंड डीजल प्रोडक्ट्स ये लोग कमा रहे हैं इसलिए ये लोग कम नहीं कर रहे हैं। दैट इज द रीजन। अगर जी देखिए, जहाँ तक रियल एस्टेट की बात है वहाँ पर अभी ओवरऑल एक लोअर सेंटिमेंट है क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास जो अभी इनकम्स की सर्टेनिटी है वो कम है। पेंडेमिक है, बहुत जगहों पे लॉकडाउन है, रिकवरी फेज में थोड़ा समय लगेगा। उस वजह से हम रियल एस्टेट मार्केट्स में एक लो प्राइस का इफेक्ट देख रहे हैं। जहां तक पेट्रोलियम की प्राइसेस की बात है, जैसे मैंने कहा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, ओपेक अपनी सप्लाई नहीं बढ़ा रहा है और उसके ऊपर काफी डिस्कशन चल रहा है ओपेक के मेंबर्स के बीच में। जब तक वो सप्लाई नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमें ये क्रूड ऑयल की प्राइसेस हाई ही मिलेंगी, जिसका असर हमें अपनी डोमेस्टिक मार्केट्स में भी नजर आएगा। मुंबई से अपने सवाल के साथ हैं गोपाल। गोपाल जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत। मार्केट वाला टीम को नमस्कार जी। सर मेरा सवाल एक ही है लेकिन थोड़ा बड़ा है और मैं आपका जवाब रेडियो पे सुनूंगा और मेरे को इसका जवाब बहुत जरूरी है क्योंकि मैं बहुत परेशान है इस सवाल से। मेरा सवाल ये है कि मैं डीमैट अकाउंट है विद बैंक में, सेविंग से कनेक्टेड है, ऑटोमेटिक उसमें से पैसे कटते हैं, उसमें से जब सेल होते हैं उसमें से आ जाते हैं, तो ये मेरा चल रहा है। मेरे साथ में मेरी मदर ज्वाइंट में नाम था, तो मेरी मदर 6 साल पहले एक्सपायर हो गई। उसके बाद में मैं एक्चुअली फर्स्ट अकाउंट होल्डर है तो मैं ट्रेडिंग अभी भी कर रहा हूँ, तो अभी मेरे उसमें नॉमिनी भी नहीं है और डीलेट भी नहीं होता सेकंड होल्डर का। तो मैंने अलग से वहीं पे एक नया डीमैट अकाउंट खुलवाया और उसमें मैंने अपने नाम से डीमैट अकाउंट खुलवाया और मैंने उसमें नॉमिनी डलवाया। तो अब मैं उनको बोला कि मेरे जो अभी पहले जो अकाउंट है उसमें से मेरे ये शेयर ट्रांसफर ये नए अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए ताकि मेरे को जूना अकाउंट मेरे को क्लोज करना है। तो ये मैं किसको ट्रांसफर करने को कितना टाइम लगता है? अभी 1 महीना हो गया इनको, इन्होंने मेरे से एफिडेविट लिखवा के लिया है कि मैंने मेरे मदर के एक्सपायर के बाद जो भी ट्रांजेक्शन किया उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल है। तो मैंने एफिडेविट लिख के दिया है और उसमें ऐसा भी लिख के दिया है कि मेरा ट्रांसफर फ्रॉम माई ओल्ड डीमैट अकाउंट तो न्यू डीमैट अकाउंट।
तो 1 महीना हो गया, अभी तक ये लोग ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। क्या कुछ टाइम लगता है, थोड़ा बताएंगे? जी, इसमें समय लगता है क्योंकि जॉइंट अकाउंट होता है, उससे डायरेक्ट आपके तक ट्रांसफर नहीं होता जब तक वो कंफर्मेशन उनकी तरफ से नहीं हो जाता कि जॉइंट अकाउंट से वो सिंगल अकाउंट हो गया है। तो कुछ समय तो लगता है, पर बहुत ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए क्योंकि आजकल सभी कुछ ऑनलाइन है। And now we have Mr. Bheem from Palghar, who's online with us. Mr. Bheem, welcome to the program. अपना सवाल पूछिए, please. नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। छोटा सा प्रश्न है मेरा कि मैं 20-30 साल से इनकम टैक्स का रिटर्न भरता रहा हूँ। अभी रिटायर होने के बाद मैडम मेरी इनकम बिल्कुल 1 लाख से भी कम हो गई है, तो क्या मुझे रिटर्न भरना ही चाहिए कंपल्सरली? नहीं भरूंगा तो पेनाल्टी देंगे वो लोग? ये पूछना था मैडम। जी, अगर आप रिटर्न भरे रहेगा, क्योंकि वैसे आपकी इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो रिटर्न की आवश्यकता नहीं होती। पर अगर आपकी कुछ कंडीशंस होती हैं जिसके वजह से अगर आप जो है असेस करने के लिए होते हैं तो आपको रिटर्न भरनी जरूरी होती है। क्योंकि आपकी इनकम एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी, पर आपको रिटर्न भर लेनी चाहिए क्योंकि वो फायदा में रहेगी। And now we have Mr. Haricharan from Kolkata. Welcome to the program. हेलो। Hello, Mr. Haricharan, please. Welcome to the program. Ask your question, please. बोल रहे हैं मैडम, मेरा एक म्यूचुअल फंड है, हाई रिस्क फंड, उसमें मैं 4000 करके दे रहा हूँ जी। वो पैसा बढ़ रहा नहीं थी। जी, आप शायद SIP की बात कर रहे हैं। जो आप 4000 कंटिन्यूसली दे रहे हैं वो कंटिन्यूसली इन्वेस्ट किया जा रहा है, और जो निवेश किया जाता है म्यूचुअल फंड में वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। उसकी वैल्यू आप असर्टेन कर सकते हैं नेट एसेट वैल्यू से, जो टोटल वैल्यू आपकी यूनिट्स की होगी, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट बढ़ी है या नहीं बढ़ी। और अब वक्त है नजर डालने का शेयर बाजार के प्रदर्शन पर। मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच आज प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी लगभग सपाट स्तर पर बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.03% की कमी से 14 अंक गिरकर 52,373 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 3 अंक बढ़कर 15,693 पर पहुंच गया। व्यापक बाजार में बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.4% लाभ में रहा और स्मॉल कैप इंडेक्स ने 0.75% का उछाल आया। The Sensex and the Nifty today closed almost flat amid mixed global cues. In a volatile session, both stocks ended divergently. The BSE Sensex fell 14 points or 0.03% to finish at 52,373, while the NSE Nifty added 3 points or 0.02% to trade at 15,693. However, in the broader market at BSE, the mid-cap gained 0.4% and the small-cap index surged 0.75%. In the Sensex pack, shares of 17 companies climbed while 13 fell. Ultratech Cement was the top gainer as it surged 2.8%. Followed by ICICI, which gained 1.2%. SBI, Axis Bank and IndusInd Bank rose 0.9% each. On the other hand, Bharti Airtel plunged 1.2%, while Tata Steel, HDFC Bank and Infosys declined 1% each. Bajaj Auto fell 0.9%. In sectoral indices, shares of 12 out of 19 sectors climbed. Realty sector was the top gainer as it rose 3.6%, followed by basic material stocks, which added 0.8%. BankX jumped 0.5%. On the other side, telecom fell 0.7%, tech declined 0.6%, and IT slipped 0.5%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 2,022 companies gained, while 1,316 fell. And now we have online with us our next caller, Mr. Dushyant from Delhi. Mr. Dushyant, welcome to the program. Please ask your question. Good evening to all of you. Sir, my question is कि मैं एक सैलरीड एम्प्लॉय हूँ और मैं डीमैट अकाउंट भी होल्ड करता हूँ और मैं कभी-कभी ट्रेडिंग भी करता हूँ, तो उसके लिए मुझे ITR कौन सी भरनी है और उसके अंदर जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो मुझे ITR में कहाँ शो करना होता है, पर्टिकुलर किस सेक्शन के अंदर, अगर मुझे बता पाए तो। 2 भरनी है आपको, और अगर आपको गेन्स या शॉर्ट टर्म गेन्स होते हैं या लॉन्ग टर्म गेन्स होते हैं उनके ऊपर आपको टैक्स पे करना होता है, और शॉर्ट टर्म गेन्स इनकम कैपिटल गेन्स के अंदर आपको दिखानी होगी। जी, और मुंबई से अपना सवाल पूछना चाहते हैं हसमुख जेडिया जी। हेलो। हाँ जी, मैं
गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा टीम। गुड इवनिंग। मेरा प्रश्न ये है, पिछले 2 महीने से अपना जो इन्फ्लेशन रेट है वो बहुत हाई जा रहा है, तो कैन वी नो व्हेन द आरबीआई इज गोइंग टू चेंज द स्टैंस एंड इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट? जी, आरबीआई गवर्नर ने ये सिग्नल दिया है कि अभी वो स्टैंस रखेंगे, और क्योंकि इन्फ्लेशन को माना जा रहा है कि वो एक टेम्पररी इंक्रीज है, 6% से हायर है, जो उनके टारगेट रेट से ज्यादा है, पर क्योंकि ये टेम्पररी है प्राइमरली बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस और क्रूड ऑयल की प्राइसेस हाई होने की वजह से, इसलिए माना जा रहा है कि अभी भी अकोमोडेटिव स्टैंस की आवश्यकता है कोविड पेंडेमिक से रिकवर करने के लिए, तो वो अभी जो है इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाएंगे। और अब हमारे साथ मुंबई से ही एक दूसरे लिसनर जुड़ गए हैं, मिस्टर रत्नाकर। रत्नाकर जी, स्वागत है मार्केट मंत्रा में, अपना सवाल पूछें। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैडम जी। हाँ, मेरा सवाल है कि अभी इनकम टैक्स भरने के लिए इनकम टैक्स का साइट कुछ चेंज हो गया है, तो वेदर इट इज रेगुलरली वर्किंग और नॉट, ये मेरा सवाल है। और दूसरा सवाल है कि अभी ऑल टाइम हाई मार्केट है, अभी कमिंग कुछ दिन में ये शेयर गिरने की संभावना कितनी है? जी, मार्केट की जो डायरेक्शन है वो इस करेगी कि आगे आने वाले समय में क्या क्वार्टरली रिजल्ट्स रहते हैं, क्योंकि इस वीक में काफी रिजल्ट्स अनाउंस हो सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक डेटा आईआईपी और इन्फ्लेशन का आज जारी हो गया है, इस पे भी रिएक्ट कर सकती है मार्केट। ज्यादातर जो वे करेगा मार्केट के ऊपर है वो फियर ऑफ द थर्ड वेव है, और मार्केट के जो Q4 के रिजल्ट्स हैं उन पे। यूएस में जो मैक्रो इकोनॉमिक डेटा आता है उससे एफआईआई की मूवमेंट से भी इफेक्ट करेगी डायरेक्शन। कंसोलिडेशन का फेज रहा है, माना जा रहा है अगर वो डेटा पॉजिटिव नहीं रहता तो डाउनवर्ड डायरेक्शन देखी जा सकती है। And let's move on to the currency. The rupee today appreciated 6 paisa to close at 74 rupees and 58 paisa against the US dollar. The dollar index, which indicates the US dollar's strength against a basket of 6 other leading currencies, rose 0.25% to trade at 92.36 in intraday trade. और अब बात एशियाई बाजारों की। पिछले सप्ताह व्यापक बिकवाली के बाद आकर्षक मूल्यांकन के बीच एशियाई शेयर बाजारों में आज बढ़त का रुख रहा। हालांकि मुद्रास्फीति के आंकड़ों और अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल की ओर से इस सप्ताह बाद में होने वाली घोषणाओं पर भी निवेशकों की नजर बनी हुई है। जापान के निकेई में आज 2.3% का उछाल आया और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.9% चढ़ा। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.7% लाभ में रहा। हांगकांग का हैंगसेंग 0.6% और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.5% की बढ़त में रहे। अंतर्देशीय कारोबार में यूरोपीय शेयर बाजार आज नुकसान में रहे। लंदन का FTSE 100 0.7% लुढ़क गया। फ्रांस का कैक 0.4% और जर्मनी का डेक्स 0.2% की गिरावट में रहे। What would be your initial comments, Dr. Agarwal, on the Asian markets? Asian markets, of course, today they were all the markets that we saw, they've been on the positive side in the green, but European stocks were a little down. So obviously this whole thing of Jerome Powell, US Fed Chairman Jerome Powell, who's going to testify on Wednesday and Thursday, and the US inflation figures which are about to come, as you just commented. So these factors are weighing heavily on the global markets as well. Yes, because it will determine as to how the FIIs will direct their flows for the returns. Primarily that movement will make a difference in the markets. But usually what happens is if the US market brings about a change in their stance, the other markets tend to follow. So initially we will see a change in the portfolio direction, but as and when the other markets follow the change, then we will not see much of a difference in the portfolio directions. And
Obviously, the way the Asian markets move and the way the US market moves, it has a direct effect on the Indian stock markets as well. If we talk about specifically, today the way the markets closed, the markets opened a gap, with a gap up, then they fell, and then they, closed almost flat. And we saw somewhat similar situation on Friday as well. So, do you see this? There was a lot of volatility, and there was a lot of last minute profit booking towards today in the markets. Do you see that happening in the coming days as well? Yes, I do see a lot of stock-specific action primarily because of the quarterly results. Yes. Also because of the IPO coming in, there would be a lot of volatility. The macroeconomic data, again, from the US will make a difference in terms of the FII flows. So the domestic institutional investors have been supporting the stock markets and have been bullish on the stock markets, which has been keeping the markets positive. But again, the data will define the direction of the market. अगर सेक्टर वाइज बात करें डॉक्टर यामिनी, तो आज रियलिटी सेक्टर टॉप गेनर रहा है। रियलिटी सेक्टर में इस तेजी के पीछे आप आज क्या वजह देख रही हैं? जी देखिए, कोई बहुत स्पेसिफिक वजह नहीं है, पर ओवरऑल इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो एक पॉजिटिव फैक्टर है जो सर्टेनिटी दिखाता है लोगों को अपनी इनकम्स के प्रति, और क्योंकि लोग अपनी सेविंग से या अपनी सर्टेन इनकम से प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वहां पे एक पॉजिटिव असर नजर आता है जब लोगों को अपने निश्चितता होती है कि हमारे पास इनकम्स कहीं से आएंगी। तो ओवरऑल ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी का एक पॉजिटिव इफेक्ट है। चंद्रेश हमारे साथ इंदौर से जुड़ गए हैं अपने सवाल के साथ। हेलो चंद्रेश जी। नमस्कार मार्केट मंत्रा को। जी नमस्कार। मेरा एक सीधा सवाल है कि मेरा एक बैंक में म्यूचुअल फंड में और शेयर मार्केट में ट्रेडिंग अकाउंट है, कुछ शेयर्स में अच्छा खासा निवेश है। अब वो जिस बैंक में मेरा निवेश है उसका ट्रेडिंग अकाउंट यूजर फ्रेंडली नहीं है। मैं चाहता हूं कि अब एक दूसरी बैंक में मैं डीमैट अकाउंट खोलूं, तो क्या ये संभव है कि मेरे डीमैट अकाउंट की जो है वो इधर ट्रांसफर हो जाएगा दूसरी बैंक में, जो कि मेरे को अच्छा लगता है ट्रेडिंग करना उस बैंक में? और मेरा म्यूचुअल फंड का भी कुछ SIP भी चल रही है, तो ये सब क्या दूसरी बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा? उसके लिए मुझे क्या चार्जेस पे करना पड़ेंगे? जी, आप ट्रेडिंग अकाउंट शिफ्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो ओवरऑल ट्रेडिंग अकाउंट के चार्जेस होंगे वही आपको चार्जेस लगेंगे। डीमैट अकाउंट आपका सेम ही रहना चाहिए। And let's move on to commodities now. Oil prices today fell more than 1%. Crude prices declined as concerns over slowing global growth outweighed the prospect of tightening supply after talks among key producers to raise output in coming months stalled. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $74.60 per barrel, while WTI crude prices were around $73.60 per barrel. बात अब गोल्ड की कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतों में गिरावट से आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना 220 रुपए सस्ता हो गया। अगस्त माह के सौदों के लिए सोना 47,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। चांदी की कीमतों में भी 560 रुपए की कमी आई। सितंबर माह के अनुबंधों के लिए चांदी का भाव 68,730 रुपए प्रति किलोग्राम रहा। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज पर सोना मामूली गिरावट के साथ $1,801 प्रति औंस, जबकि चांदी $26 प्रति औंस पर कारोबार कर रहे थे। Dr. Agarwal, a very brief comment I'll want to get from you. You know, today the gold prices have fallen, but one thing that our listeners keep asking us again and again is that what is more attractive, investing in sovereign gold bonds versus physical gold? What do you think is a better option? Well, if one wants to invest for the purposes of making returns, then sovereign gold bonds are a better option than investing for physical gold, because physical gold tends to, have a storage cost and a theft problem, whereas sovereign gold bonds as a financial investment gives you a return of 2.5% per annum, as well as, has the benefit of being exempted from capital gains. So overall, financial investment, sovereign gold bonds would be much better. जी, डॉक्टर यामिनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कार्यक्रम में शामिल हुई और श्रोताओं के सवालों के जवाब दिए। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और अब चलते चलते मुख्य समाचारों पर एक नजर फिर से।
Retail inflation eases marginally to 6.26% in June this year. Elevated prices in food, fuel and clothing keep inflation above 6%. Domestic stocks close almost flat. Sensex finishes at 52,373. Nifty settles at 15,693. And Brent crude prices decline to trade below $75 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. We'll be back tomorrow at 3 p.m. with Money Matters. Do join us then. Till then, namaskar. Market Mantra.